नमस्कार, मैं रेखा ITV से आप सभी का अभिनंदन कर रही हूँ। उम्मीद है कि आप सब अच्छे भले हैं और हमारा कार्यक्रम का मज़ा लेने के लिए भी तैयार हैं। तो आओ देखते हैं आज की कार्यक्रम में क्या है। सबसे पहले ईद पर एक खास कार्यक्रम मौलाना हाजी अहमद से, फिर दीवा 2010 के अश्विन आनंद से एक मुलाकात। हमारे ITV की पूरी टीम की ओर से सभी मुसलमानों को ईद का ढेर सारा मुबारकबादी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि दुनिया के कई भागों में शुक्रवार को ईद मनाई गई। ईद अल फितर मुसलमानों का खास त्यौहार है जो रमज़ान की समाप्ति पर नए चांद को देखकर मनाई जाती है। रमज़ान का महीना जो रोज़ा का महीना होता है, इसे ख़त्म होने पर ईद का 3 दिनों का जश्न मनाया जाता है। आज हम लाए हैं ईद पर एक ख़ास कार्यक्रम मौलाना हाजी अहमद से, जो हाल ही में मई रोड माउंट रोस्कल में हुई है। यहाँ पर कुछ लोगों से ईद की मुबारकबादी हुई। चलिए देखते हैं इस ईद की जश्न को। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यिदिना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सलातन व सलामन अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़लिमीन. All praises are due to Allah subhanahu wa ta'ala, the Lord and Cherisher of the worlds. Durood and salam on my universal Rasul, the Holy Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam. We are indeed very grateful to Almighty Allah for giving us this day of Eid al-Fitr. It is a day that culminates the long month of fasting, the month of Ramadan, which the Holy Quran states, O you who believe, fasting is prescribed to you as it was prescribed to those before you, that ye may learn self-restraint. So we have, in this month, restrained ourselves, we've fasted, and Allah subhanahu wa ta'ala gives us this day of Eid al-Fitr to celebrate. It is a day of happiness, it is a joy. You will see brothers in Islam embracing each other after the Eid al-Fitr Salah. On behalf of our organization, Al-Hijaz Trust Linfield Islamic Center, it is my pleasure and privilege to extend Eid Mubarak greetings to all Muslim brothers and sisters and children in Islam in New Zealand as well as around the globe. Eid Mubarak greetings to you. On this day of joy and happiness, we also would like to remember our Muslim brothers and sisters that have been affected with the recent flooding in Pakistan as well as in China. And of course, here at home, as Muslims, our prayers and thoughts are with the victims of the recent earthquake in Christchurch. We pray to Almighty Allah that He gives them one and all peace and sabr during this time. As we proceed with this morning's Eid al-Fitr prayer, our Pesh Imam, Hazrat Maulana Haji Ahmed, will deliver the pre-khutbah talk, which will outline the acts of Eid al-Fitr as well as the Sunnah and the embracing of Muslim brothers after the remaining activities on this day. We will then conclude with a final dua, and you will witness at the end that brothers embracing each other, signifying the joy and happiness of this day of Eid. It is mustahab to hug and greet one another. Last but not least, on behalf of the organization Al-Hijaz Trust Linfield Islamic Center, I would like to sincerely thank Brother Azad Sheikh for sponsoring this recording, and may Allah subhanahu wa ta'ala grant him success in this dunya as well as in the akhirah. وما علينا إلا البلاغ المبين. हम्दो सलात के बाद नहायत ही वाजिबुल एहतराम
मोहतरम हाज़रीन सामईन, रब्बे करीम जल्ल व अला शानहू का बेइंतहा शुक्र और उसका करम है जिसकी मेहरबानी से आज हम इस मुबारक ईद के दिन यहाँ पर जमा हैं। दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला हमारी हाज़री को अपनी बारगाह ला यज़ाल में कबूल और मंजूर फरमाए। माह मुबारक रमज़ान शरीफ का महीना जो ख़त्म हुआ और ये शवाल की पहली तारीख है। हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स माह रमज़ान की आमद पर यानी माह रमज़ान के आने पर खुश हो और माह रमज़ान के जाने पर गम करे और दुख हो उसके दिल को, तो फरमाए उसके लिए जन्नत है। और आज ईद का दिन एक तरफ तो हमारे लिए ये खुशी का दिन है, लेकिन साथ ये कि रमज़ान के जाने का हमें दुख और अफसोस भी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें आइंदा साल फिर से रमज़ान नसीब फरमाए। ईद का लफ्ज़ कुरान मजीद में मौजूद है। हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया कि रब्बना अंज़िल अलैना माइदतम मिनस समाई तकून लना ईदन, इलाही हमारे ऊपर दस्तरखान उतार, और जिस दिन इलाही हमारे ऊपर तू खाना यानी दस्तरखान आसमानों से उतारे वो दिन हमारे लिए ईद का दिन हो। और ईद लफ्ज़ औद से मुश्तक़ है। ईद को इसलिए ईद कहते हैं कि ये बार बार लौट के वापस आती है, और हकीकत में ईद का दिन उन रोज़ेदारों के लिए है या उन खुश नसीब ईमानदारों के लिए है कि जिन्होंने माह रमज़ान में रमज़ान के रोज़े रखे और रातों को क़याम किया और नमाज तरावी अदा की, अल्लाह का मुक़द्दस कलाम सुना और माह रमज़ान की सही तौर पर अदब एहतराम और उसका ताज़ीम किया। तो ऐसे खुश नसीब लोगों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने आज बदले का दिन जो है ईद उसको ईद रखा है। और रब्बे करीम जल्ला व अला शानहू के मुकर्रब तरीन फरिश्ते राहों में फैल जाते हैं, यहाँ तक कि जहाँ पर नमाज ईद होती है वहाँ पर भी उनकी तशरीफ आवरी होती है और हर आने वाले का नाम वो लिखते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन फरिश्तों को गवाह बना के ये फरमाता है, मेरे फरिश्तों तुम गवाह रहना कि इन तमाम लोगों की मैंने मग़फ़िरत फरमा दी है। यानी जब कोई मेहनत करता है, मजदूरी करता है, तो मेहनत और मजदूरी के बाद उसको अजर और उसका तलब और उसकी वेजेस देने का उसका जब टाइम होता है, तो हकीकत में वो उसके लिए खुशी का वक्त होता है कि जिस वक्त वो मेहनत के बाद हाथ में लेता है अपनी मेहनत की कमाई को, उसके लिए वो खुशी का दिन होता है। और वो वक्त खुशी का होता है कि उसके जेब में चंद पैसे आ गए। इसी तरह माह रमज़ान में जिन खुश नसीब लोगों ने रमज़ान के रोजे रखे और एहतराम किया है और सही तौर पर अपनी तरफ से कोशिश की है, आज का दिन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह अक़दस से बदला मिलने का दिन है। तो दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला हमें बेहतर से बेहतर बदला अता फरमाए। और अपनी दुआओं में आज के दिन हमेशा और खुसूसन हमारे उन अहले इस्लाम को और हमारे उन पाकिस्तानी भाइयों को कि जो इस वक्त भी फलक और सैलाब ज़दा हैं और इस वक्त वो कैंपों में खुदा जाने किस किस हालत में वो ईद मनाएंगे, तो इसलिए जहाँ पर हम अपनी खुशी करते हैं अपने से ज़्यादा उनकी खुशी का ख्याल करें और अपनी दुआओं को में याद करें कि या अल्लाह तो उनकी मुसीबत को दूर फरमा और जल्द अज जल्द उनको उनका घर और उनकी खुशियाँ उनको वापस अता फरमा। और सदका फितर उसके देने का, और इस्लाम ने जो निज़ाम ज़कात का शुरू फरमाया उसका भी यही मकसद है कि अहले दौलत अहले सरवत
या अच्छे खासे लोग जिनको अल्लाह ने सब कुछ दिया है वो तो खुद खुशी मनाएंगे और उनके बच्चे अच्छे तरीके के साथ ईद मनाएंगे, लेकिन हमारे ही मुआशरे में, हमारे ही क़ुर्ब व जवार में ऐसे भी गरीब लोग मौजूद हैं कि जिनके अंदर ये हिम्मत और ये ताकत नहीं है। और हकीकत हाल तो ये है कि ये अल्लाह की देन है, वो चाहे तो जिसको बेहिसाब दे दे, वो चाहे तो जिसके लिए रोजी और रिज़्क़ को तंग कर दे, ये अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के ऊपर है, ये उसके ज़िम्मा करम पर है। बहरहाल ये उसकी जिम्मेदारी है, उसका ज़िम्मा करम है कि जिसको भी उसने पैदा फरमाया है वो उसको ज़रूर रिज़्क़ अता फरमा देता है। और लिहाजा हदीस पाक में नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं कि अगर तुम माल और दौलत में या अपनी सेहत और हेल्थ में अगर किसी को देखना हो तो अगर दूसरे को देखो, और अगर कोई तुम्हारे पास अगर माल और दौलत अल्लाह ने ज्यादा दिया है तो फिर उसको देखो कि जिसके पास माल और दौलत कम है। यानी अपने से आगे वाले को ना देखो बल्कि अपने से नीचे वाले को देखो। और अगर अल्लाह ने सेहतयाबी अता की है और हेल्थ अता फरमाई है और सेहत अच्छी है तो फिर फरमाया कि अपने से ज्यादा ताकतवर की या अपने से ज्यादा पहलवान को न देखो बल्कि तुमसे ज्यादा जो कमजोर है, बल्कि तुमसे ज्यादा जो बीमार है उस बीमार की तरफ देखो। कि अगर तुम अपने से कम दर्जे के गनी को देखोगे या अपने से कम दर्जे के सेहत वाले को देखोगे तो तुम्हारे दिल में एक डर पैदा होगा और यकीनन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तुम्हारा सर झुकेगा कि या अल्लाह शुक्र है कि तूने मुझे माल दौलत भी अता फरमाए और तूने मुझे सेहत और तंदुरुस्ती भी अता फरमाई। तो ये हमारी जिम्मेदारियां हैं कि आज के दिन खुसूसन उन तमाम गुरबा को याद करना है, उनको याद रखना है। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eid Mubarak to everyone out there. I just pray that Allah subhanahu wa ta'ala accepts all our efforts during Ramadan and blesses us for the forthcoming year, and also forgives us for any sins or things we may have done wrong in the past year. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. मिलते हैं आप सभी से एक छोटी सी ब्रेक के बाद। नाजरीन को मेरी तरफ से और हमारे लीनफील्ड इस्लामिक सेंटर की तरफ से और ख़ुसूसन जिन हमारे भाई साहब का स्पॉन्सर है उनकी तरफ से मैं तमाम मुसलमानों को खुसूसन जो न्यूजीलैंड में है और जो दुनिया भर के मुसलमान जहाँ तक ये आवाज़ और तस्वीर जा रही है, मैं तमाम को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रमज़ान के अंदर की जाने वाली इबादतों को कबूल और मंजूर फरमाए। बस एक ख़ास मैसेज आप तमाम के लिए यही है कि जिस तरीके के साथ हमने माह रमज़ान में इबादतें की हैं, हम उसी तरह आइंदा भी पूरा साल अल्लाह तबारक व तआला को याद करें और उसकी इबादतें करें और नमाज की पाबंदी करें और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ फरमाएं अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों की हाज़िरी को कबूल और मंजूर फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला का करोड़ करोड़ एहसान कि उसने हमें एक महीने के इम्तिहान के बाद जिसमें हमारे तखलीक का इम्तिहान हुआ, जिसमें अल्लाह ताला के अहकामात के ऊपर बहुत सख्ती के साथ अमल रहा, उसके बाद हमें आज का दिन अता फ़रमाया और यकीनी तौर पर ये इनाम का दिन है, अल्लाह ताला की रहमत पर खुशी मनाने का दिन है। और हम लोग तमाम भाई, जिस तरह कि आप लोगों ने भी देखा, सब लोग आज हम साथ हैं। आज एक मुसलमानों के इत्तेहाद और यकजहती का इजहार है कि तमाम मुसलमान एक ही रब के आगे झुकते हैं, उसी रब के अहकामात पर अमल करते हुए पूरे महीने का इम्तिहान दिया। और आज जब ईद का दिन अल्लाह ताला का ख़ास इनाम व कराम का दिन है तो आज भी हम लोग साथ हैं। और यही रमज़ान हमें यूनिटी का दर्स देता है और यही रमज़ान हमें आज ईद के दिन भी हमें जो है यूनिटी का दर्स मिला है। तो बस यही मेरा पैगाम है कि मुसलमान जहाँ कहीं भी हैं वो एक हैं, हम लोग सब एक हैं। एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताबा खा के काशगर। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला। नमस्कार, मैं हूँ अश्विन आनंद, प्रमोटर ऑफ हाई स्कूल रॉकर्स, इंडियन डीवा, इंडियन आइडल। और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग जो टीवी देख रहे हैं, हमारे मुस्लिम भाई, आप सभी को ईद मुबारक। बहुत खुशी की बात है कि मेरा जो शो आने वाला है अगले हफ्ते, विच इज़ 18 सितंबर, इंडियन आइडल, इंडियन डीवा और डांस पारी, ये ईद के बाद है। तो हम लोग मिलजुल के ये सेलिब्रेशन कर सकते हैं एक बार फिर से। तो आप सबको ये कहना चाहूँगा
कि प्लीज़ आइएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा। इंडियन आइडल इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन सिंगल्स, और इंडियन डीवा जो है वो एक डांस कंपटीशन है। और उसके बाद में जहाँ पे जितने भी फैमिली मेम्बर्स वहाँ पे आएंगे, जितने भी फ्रेंड्स आएंगे, सपोर्टर्स आएंगे, उनके लिए जब वो कंपटीशन जीतते हैं तो उनके लिए एक छोटा सा डांस पार्टी हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है कि जो जैसे ही प्राइज गिविंग ये सब हो जाएगा उसके बाद में विल हैव द म्यूजिक ऑन टोटल बॉलीवुड। कोई इंग्लिश गाना वाना नहीं होगा, बेसिकली एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी बॉलीवुड, हिंदी होगा, और हम लोग सब मिल के ये सेलिब्रेट कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। तो आप सबको ये निमंत्रण है, थैंक यू है कि आप प्लीज़ आइएगा। हाई स्कूल रॉकर्स के बाद जैसे कि आपको पता है हाई स्कूल रॉकर्स वाज अ वेरी सक्सेसफुल इवेंट। उसके बाद में हम लेके आ रहे हैं ये इंडियन डीवा और इंडियन आइडल। जाने से पहले सभी स्पॉन्सर्स को थैंक यू बोलना चाहूँगा, स्पेशली मल्टी डीजे, इंडियन टीवी को, जिसके ज़रिए से ये मौका मिला है कि आप तक ये मैसेज पहुंचा सकता हूं मैं। और साथ साथ में लाल्स ट्रांसपोर्ट लिमिटेड, निप्पॉन साउथ पैसिफिक लिमिटेड, और साथ साथ में आर के कास्ट जो हमारे मेजर प्रेजेंटर है, और सभी स्पॉन्सर्स जो मेजर स्पॉन्सर्स है, और सभी को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। प्लीज़ आइएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा। हमारे लोकल टैलेंट जो यहाँ पे सिंगर्स है, पाकिस्तान से है, इंडिया से है, हैदराबाद से है, फिजी से है, ये सब वहाँ पे रहेंगे, अपना टैलेंट दिखाएंगे। और उसके बाद में इंडियन डीवा शुरू होगा, जिसमें मॉरिशस से डांसेस है, इंडिया से है, साउथ अफ्रीका से है, फिजी से है, पाकिस्तान से है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे पास जितने कॉन्टेस्टेंट्स हैं उसमें से कई स्टूडेंट्स हैं जो मुस्लिम हैं, और रोज़ा के महीने में इन लोगों ने फास्टिंग करते हुए भी इतना मेहनत करके ये शो को कामयाब बनाने की कोशिश की है। तो प्लीज़ आप ज़रूर आइएगा। लॉट्स ऑफ गिव अवेज है हमारे पास देने के लिए, जैसे कि आपको पता है कि हम हमेशा गिव अवेज देते हैं। इट्स हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, इट्स नॉट बेस्ड ऑन मनी मेकिंग, वी वांट टू गिव whatever we make back to the community। तो इसके लिए हम लोगों ने बहुत सारा गिव अवे रखा है। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग, सिंगिंग, डांसिंग, डांस पार्टी, और लॉट्स ऑफ गिव अवेज, फन फॉर द एंटायर फैमिली। टिकट्स $20 है। अब आप सभी इंडियन आउटलेट्स में ये टिकट्स ले सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर आइएगा। विल हैव अ ग्रेट टाइम, इट्स गोइंग टू बी अ रॉकिंग शो, एंड सी यू गाइस देयर। उम्मीद है कार्यक्रम को आप सबने पसंद किया होगा। मिलते हैं अगले सप्ताह और भी नए विषय के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।